This is the third time that lockdown has been extended. Guys, in this video, I will tell you about all the series of the lockdown that has been implemented till now, about the extensions and about the exams that has been postponed, about all the exams, the results, interview dates in detail. So stay tuned to the end of the video. Stay tuned to the end of the video. एंड गाइस दिस वीडियो इज़ बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आता, तो मेरी हर वीडियो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाती हूँ. पहले इंग्लिश में बनाती हूँ और फिर हिंदी में. तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको हिंदी में भी वही कंटेंट सेम मिलेगा. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल. आई एम पायल हेयर. So guys, actually yesterday evening, the news was released that lockdown has been extended till 17th of May. The lockdown, which was about to end on 3rd of May, it will end now on 17th of May. So it's good news if you think about the pandemic that has been going on, and it's a good effort by the government, but it's a really bad news for the candidates waiting for the results and waiting for the exams to be conducted, because all the exams, all the results will be postponed again. And I will talk about all the lockdowns that has been implemented till now. First one was on 24th of March, right? So the first lockdown was implemented on 24th of March. It was about to end on 14th of April. So but it extended till 3rd of May. Then again the lockdown has been extended yesterday till 17th of May. So this is the third time that lockdown has been implemented and the second time that it has been extended. So now talk about the exams that has been postponed. First, RBI assistant mains. Many candidates are waiting for the RBI assistant mains exam date to be confirmed. It has not been confirmed yet. I checked it. And the RBI grade B. I also myself has given the RBI grade B mains exam, and I was waiting for my scorecard because I couldn't clear it, and it was my first attempt, but I couldn't clear it. So I was waiting for my scorecard, but it will be result only after the final result has been declared of RBI, and that will happen only when the interview will be conducted. And the interview for the RBI journal was to be held between 3rd to 7th of May. But now, as the lockdown has been postponed again of 7 to 17th of May for 2 more weeks, now the interview dates will also be postponed. Alright, so the final result will also postpone. I won't be able to see my scorecard, and I won't be able to analyze it or share it with you guys, as I was about to do the same. And that was all about RBI related. Alright, now come to SEBI, Securities Exchange Board of India. SEBI made us happy by giving a good news in the starting, before the lockdown was implemented, before 24th of March. It gave the notification on 7th of March about the SEBI grade A exam. Alright, and for which the overall salary is 1,07,000. That's a very big amount, and many candidates were willing to fill the form. So the exams were about to be conducted on 12th of April, the first pre-exam, and the second was to be conducted on 3rd of May. But due to the lockdown, the exams date were postponed to July and then to August. For pre-exam, it was about to be held on 3rd of July, and the mains exam, SEBI grade A mains exam, was to be held on 23rd of August. But now but now on 21st of April, again the dates were postponed because they knew that the lockdown will be extended, and it has happened again, as you can see. So no new dates has been confirmed till now, but the date of filling the application form, it has been extended till 31st of May. So if you are willing to fill the form of SEBI grade A exam, you can do it now, and or think about it,
because the last date is till 31st of May. All right, for SEBI grade A examination, and the new dates when the exam will be conducted, it has not been released yet, because there is no surety when the lockdown will end, and I think the lockdown will extend more, maybe till May end. So that was about SEBI, and I was waiting for the SBI clerk pre-result also. So many candidates has given the SBI clerk pre-exam. SBI has released the notice, okay, for postponement of the exam, but they didn't even think of giving the result. At least they could do that. I mean, they are working from home, or they could declare the result of the SBI clerk pre. If they can't, I mean. Declare the date at least, so that we can get more time, and many candidates who are confused that whether they will clear the SBI clerk pre or not, or they should prepare for SBI clerk means exam or not. Many candidates ask me also that, ma'am, I have attempted these questions, what will be the cutoff, should I prepare for mains or not? So they should do it, and it's up to them, what can we do, but you should prepare for SBI clerk mains also. It was about to held on 19th of April, but till now no new date has been confirmed, so I think it will be postponed to a later date. More There will be more extension for the exam also, more delay for the exams also, when the exam will be conducted. So that was about SBI, and the SBI PO notification that was about to released, that has also been delayed due to the coronavirus pandemic and the lockdown basically. So then IBPS PO final result. What IBPS did on 26th of April, the result was about to come on 1st of April, right? We waited the whole day. Many candidates they waste their whole day on 1st of April, and IBPS didn't even give a notice. They gave the notice for the CRP 8, okay, about the reserved list, but they didn't think of giving or make an effort of at least informing us that the result will be postponed. We waited for 24 days, and then on 26th of April they are giving just a notification for formality that yeah, the results will be postponed. Okay, what's new in that? We know that the results are postponed, so that was just a formality that you can see on the IBPS site also. There will be there is a notice regarding IBPS result, but it arrived on 26th of April. All right. So that's good of them that at least they share the notice, and that was about the results. And guys, I think the one thing that is in our hand is just to prepare, nothing else. And as far as I think, if you ask about my opinion, I think the lockdown will be extended more even after 17 May, and because it is a continuous series. First, the lockdown was extended from the extended to 3rd of May, and then it is extended to 17th of May. The government is doing, it is not implementing the lockdown completely at the same time. It is doing it in installments, so the students, I mean, so the people do not panic. Okay, and that's why. And so that was all about today, and all the best for your exams. Do not lose hope about the exams notifications also. Grab what is now in your hand. Do not get demotivated, and just focus on your studies, and keep watching my channel. And that was all for today. Thank you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है पायल और आपका स्वागत है मेरे चैनल में बैंकिंग लाइफ पायल में। तो लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया 17 मई तक। अभी 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था, और ये 17 मई को एक्सटेंड हो गया। न्यूज़ कल शाम को ही आ गई थी, बट मुझे कल शाम को ही न्यूज़ मिल गई थी, बट मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हो। तो बट फिर मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना तो ज़रूरी है।
कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि मतलब न्यूज़ आई है, मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया आपको अपडेट करने में, बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपको हर न्यूज़ टाइम पे ही मिलेगी जैसे ही आती है, ऑलराइट। और हर चीज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि क्या चल रहा है, हमारे एग्ज़ाम्स रिलेटेड, बैंकिंग एग्ज़ाम्स रिलेटेड रिजल्ट कब आ रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तो उस सब की न्यूज़ मैं आपको देती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी एज सुन एज़ पॉसिबल, जैसे ही मेरे पास न्यूज़ आएगी उसी टाइम, ऑलराइट। तो अभी थोड़ा लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं कि लॉकडाउन सबसे पहले हुआ कब था। पहला जो लॉकडाउन हुआ था हमारा, वो हुआ था 24 मार्च को। ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है ना डिले होने की सारी, जिन लोगों को पता नहीं है कि लॉकडाउन कब से चल रहा है, तो 24 मार्च को पहला हुआ, जो कि एंड होना था 14 अप्रैल को, ठीक है। और फिर 14 अप्रैल वाला एक्सटेंड हुआ 3 मई को। देन अब 3 मई को जो एंड होना था वो कर दिया इन्होंने एक्सटेंड फिर 17 मई तक। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक ही बारी में लॉकडाउन नहीं लगा रही कि 2 महीने का लगा दिया, मतलब 60 दिन का लगा दिया, ऐसे कर दिया, क्योंकि लोग पैनिक कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि किश्तों में लॉकडाउन एक्सटेंड कर रही है धीरे धीरे, कि हाँ लोग वेट करेंगे एंड देन फिर आगे पोस्टपोन करेंगे। एकदम से लोगों को बता देंगे कि हाँ इतने दिन का लॉकडाउन है, तो वो पैनिक कर जाएंगे। तो मे बी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है जो वो फॉलो कर रही है। तो मुझे लगता है कि शायद लॉकडाउन अभी और आगे बढ़ेगा। तो अभी इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे जो आरबीआई का, कुछ बच्चे आरबीआई रिलेटेड पहले मैं बताऊंगी। आरबीआई के 2 एग्ज़ाम्स होने थे, एक तो आरबीआई ग्रेड बी रिलेटेड इंटरव्यूज़ होने थे, और एक आरबीआई असिस्टेंट मेंस का। एक तो ठीक है, नोटिफिकेशन भी 2 साल बाद आई है। अब फिर लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि एग्ज़ाम्स और लेट हो गए हैं। तो कुछ बच्चे जो वेट कर रहे थे आरबीआई असिस्टेंट मेंस, मैंने भी दिया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ आरबीआई असिस्टेंट प्री की। प्री मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और आई गॉट 92.5 मार्क्स। आई अप्लाइड फ्रॉम दिल्ली बट स्टिल आई कुडंट क्लियर बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम थी, 34 वैकेंसीज थी। तो अदरवाइज़ मैं आपको एनालिसिस भी दे देती है एग्ज़ाम का, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का, कि एग्ज़ाम कैसा गया, या मतलब आगे जब भी होता तो एग्ज़ाम्स होगा तो, बट अब और डिले होगा क्योंकि 17 मई तक तो अब तो और कोई चांस नहीं है। तो एक तो ये था आरबीआई असिस्टेंट मेंस का, जो अभी एग्ज़ाम्स जो होने हैं उनमें एक तो ये एग्ज़ाम होना है, ठीक है, जो पोस्टपोन्ड हुआ है। नेक्स्ट है आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी का मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, अब की बार मैंने प्री क्लियर किया था, मेरा मेंस था 1 दिसंबर को जो मैंने दिया था। तो मैं खुद अपने स्कोर कार्ड का वेट कर रही थी, आरबीआई मेंस के स्कोर कार्ड का, कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं उसको, आपको बता सकूं कि आरबीआई ग्रेड बी का मेंस का पेपर कैसा आता है, या मेरा मतलब एनालिसिस से कि कैसा गया, क्या करना चाहिए। तो बट अब इंटरव्यू की डेट जो जनरल की थी, जिसमें मैंने अप्लाई किया था एग्ज़ाम में, तो उसमें वो इंटरव्यू होने थे 3 मई से 7 मई के बीच में। बट अब लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो इंटरव्यू की डेट और पोस्टपोन हो गई है, जबकि अब तक फाइनल रिजल्ट आ जाता था मार्च में। तो अब जब तक इंटरव्यूज़ नहीं होते, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर जाके कहीं स्कोर कार्ड रिलीज़ होंगे, फिर मेरा स्कोर कार्ड आएगा, फिर मैं आपसे शेयर कर पाऊँगी। तो वो काफ़ी डिले हो गया। तो ये था आरबीआई रिलेटेड। देन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सेबी के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रेड ए एग्ज़ाम। सेबी ने अब की बार हमारे लिए एक गुड न्यूज़ लेके आए कि जो नोटिफिकेशन क्या आती थी कि अक्टूबर सितंबर वगैरह में आती थी ना सर्दियों में, वो अब की बार बहुत जल्दी आई, मार्च में आ गई। बिकॉज 2019 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, 2018 में सेबी का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए अब की बार थोड़ा जल्दी आ गया 2020 में। तो सेबी ग्रेड ए के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई थी 7 मार्च को, और एग्ज़ाम होना था पहले 12 अप्रैल को और 3 मई को, 12 अप्रैल को प्री का और 3 मई को मेंस का। बट लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, न्यू डेट्स आई 3 जुलाई और 23 अगस्त, प्री की 3 जुलाई और मेंस की 23 अगस्त। बट 21 अप्रैल को सेबी ने फिर इन्फॉर्म किया कि लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा। उन्हें भी पता था कि पता नहीं कब मतलब सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो अब कोई न्यू डेट तो कंफर्म हुई नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो 30 अप्रैल लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो एक्सटेंड करके 31 मई कर दी है। तो अभी आपके पास आज 2 मई है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप सोच सकते हैं आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना। तो 31 मई लास्ट डेट है, आप अगर भरना चाहें तो। और मैं भी सभी का एग्ज़ाम मतलब मैंने भी फॉर्म भरा है, तो जैसे ही मैं एग्ज़ाम दूंगी प्री का, अगर मेरा क्लियर हो जाता है प्री, तो मेंस का भी आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। तो प्रिपेयरिंग फॉर इट।
उसका भी मैं एनालिसिस आपको देती रहूँगी, सेबी का भी और आरबीआई का भी मैं अपडेट करती रहूँगी। और तो ये था सेबी रिलेटेड, ठीक है। अभी न्यू डेट्स कोई आई नहीं है सेबी की एग्ज़ाम्स की कि कब होगा कंडक्ट। एसबीआई का जो इन्होंने नोटिस डाला कि 19 अप्रैल का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन होगा, तो आई थिंक एटलीस्ट एसबीआई को मतलब प्री का रिज़ल्ट तो बता देना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, बिकॉज मतलब उनके पास स्टार्टिंग में टाइम था बट फिर भी उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया। और तो एटलीस्ट कुछ बच्चों को कंफर्म तो हो जाता, बिकॉज काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम दे ना दें। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी था स्टार्टिंग में कि मैम मेरे इतने अटैम्प्ट्स हैं, मैंने वेस्ट बंगाल से अप्लाई किया, मैंने इस स्टेट से अप्लाई किया, मेरे इतने अटैम्प्ट्स हैं, क्या कट ऑफ जाएगी, मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब वो इतने कंफ्यूज थे, तो एटलीस्ट वो एक क्लैरिटी हो जाती कि अगर एग्ज़ाम प्री का रिज़ल्ट आ जाता। तो मैंने भी दिया है, अभी मेरे 91 अटैम्प्ट्स थे एसबीआई क्लर्क प्री पे। और जैसे रिज़ल्ट आता है फिर मैं उसका भी अपडेट करूँगी आपको। मेंस का एग्ज़ाम जो दूँगी उसमें एनालिसिस उसका मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और तो प्रिपरेशन करते रहिए, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत आपका टाइम बहुत ख़राब होगा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्रिपरेशन करने के। और आईबीपीएस पीओ का भी फाइनल रिज़ल्ट आना था। आईबीपीएस ने क्या किया है, 1 अप्रैल से पहले सीआरपी 8 नोटिफिकेशन जो था रिजर्व लिस्ट का, उसका नोटिस तो दे दिया कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, ठीक है, बाद में आएंगे 31 मार्च के बाद। एग्ज़ाम नहीं, सॉरी, वो जो बच्चे सिलेक्ट होने हैं उनके बारे में, उनकी जो लिस्ट आनी थी उस बारे में। लेकिन सीआरपी 9 का इनको पता नहीं नोटिस देते हुए क्या दुख हुआ। पूरा एक मतलब काफ़ी सारे बच्चों का तो पूरा 1 अप्रैल का जो डे था वो ख़राब गया, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आएगा, वो दिन गया ख़राब। फिर 14 अप्रैल तक वेट किया, फिर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, फिर वेट करा कि 20 तारीख तक में भी जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई और जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने अगर अलाउ किया कि आप ये बैंक्स खोल सकते हो या ये इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हो, तो तब वेट किया। तो सब कुछ हो जाने के बाद 26 अप्रैल को, पूरा महीना बीत गया, 26 अप्रैल को आईबीपीएस ने एक फॉर्मेलिटी के लिए, कोई एग्जैक्ट डेट फिर भी नहीं आई, एक फॉर्मेलिटी के लिए एक नोटिस डाल दिया कि हाँ कोविड-19 पेंडेमिक है, तो इस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे और मतलब बाद में बताएंगे कि कब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये मतलब क्या है, ये फॉर्मेलिटी है, ये तो हमें पता ही है कि हाँ मतलब लेट होगा। तो यही अगर आप नोटिस थोड़ा पहले डाल देते, तो 1 अप्रैल से पहले या एटलीस्ट 2-3 अप्रैल को ही, तो मतलब जो बच्चे इतना वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके माइंड में ऑलरेडी इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि कब रिज़ल्ट आएगा, टाइम ख़राब हो रहा है, बार बार वो साइट को रिफ़्रेश करें, एटलीस्ट वो चीज़ तो ना होती ना। तो फिर भी थैंक्स टू देम कि एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के लिए सही उन्होंने एक नोटिस तो डाला। 26 अप्रैल को डाला था, आप आईबीपीएस की साइट पे जाके भी देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो उसका भी अभी पता नहीं कब आएगा। तो ये सारे एग्ज़ाम्स थे। और नबार्ड का मैं बताना भूल गई आपको, नबार्ड मेंस का भी बच्चे वेट कर रहे हैं पेपर देने के लिए। तो काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, आरबीआई की प्रिपरेशन, सेबी की प्रिपरेशन और नबार्ड की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं। काफ़ी टफ होने वाला है, बिकॉज अब की बार तीनों चीज़ें मतलब एक साथ क्लैश होने वाली हैं। और डेट्स तो क्लैश नहीं होंगी, बट तैयारी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, मुश्किल होगा, बट दे रहे हैं बच्चे। मेरे एक फ्रेंड है, वो भी दे रहे हैं मेरे साथ, जो सेबी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो उनका भी नबार्ड का मेंस का एग्ज़ाम है और उनका प्री क्लियर हो गया था। तो थैंक गॉड कि उसका रिज़ल्ट तो आ गया था लॉकडाउन से पहले, वरना उसका भी हमें वेट करना पड़ता। तो ये था आज के लिए। और बेस्ट यही रहेगा दोस्तों कि टाइम वेस्ट ना करो, जितना एक्स्ट्रा टाइम मिला है जस्ट फोकस ऑन स्टडी। मे बी लॉकडाउन अभी और पोस्टपोन्ड हो, मतलब एक्सटेंड हो, क्या पता 31 मई तक, मई एंड तक रहे, जहाँ तक मुझे लगता है। बिकॉज काफ़ी ग्रीन एरियाज़, आई मीन सॉरी रेड एरियाज़ अभी भी हैं जो डिक्लेयर करे हैं गवर्नमेंट ने। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड डो नॉट गेट डिमोटिवेट मत होइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ मतलब मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ या आपके लिए मेरी कोई वीडियोस यूज़फुल हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर चीज़ की सबसे पहले मिले। और देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।